Hello and welcome back to our channel GLC Sirohi. In the series of video lessons, we are going to discuss about various law subjects. My name is Vijay Kumar. I am Assistant Professor Law at Government Law College Sirohi. The channel is created for the purpose of teaching various subjects to our law students during this lockdown. In the last video, we have discussed the definition, meaning, nature and scope about contract of guarantee and indemnity. In this lecture, we'll be discussing about the distinction between contract of guarantee and indemnity. So let's go to the part with respect to distinction. हमने अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 7 पार्ट में डिवाइड किया है. So basically, what are these 7 parts? The first one is number of party in the contract, each contract. Nature of liability in each case. What is the liability in case of contract of indemnity, and what is the nature of liability of nature and scope of liability in case of contract of guarantee. The time when the liability arises, so actual occurrence or happening when the liability will arise. Time when the party, the promisor, needs to act. The fifth one is right to sue third party. So in each case, whether the party will have any right to take direct action against the third party or not. Third party who is responsible for the occurrence of the act. The sixth one is the purpose of each contract. And the last one is the competency to contract, competency with respect to each party which is involved in the contract. So let's go to the first part. The contract of indemnity involves two parties, promisor and promisee. As we know, any contract involves at least two parties. So minimum number of party that is involved in a contract, any case, is two party. So indemnity contract also involve two parties. The name of these parties, the first one, the promisor, is called indemnifier and the promisee is called indemnified. In case of contract of guarantee, there are three parties. So we have already discussed about the contract of guarantee, the parties also creditor, principal, debtor and surety. Now, why the contract of guarantee involve three parties and whereas the other contract involve two parties only? The reason is that in case of contract of guarantee, the purpose is to provide security or the safeguard to the person who is actually providing some amount of loan or some kind of obligation to the other party. So obviously, when the security is required, when we say about the additional security, that means there has to be a third person who will provide that security, and that third person is the guarantor or the surety. So in this case, there are going to be three party, and the other case there has to be two party. The second one, the second is about nature of liability in case of contract of indemnity and contract of liability. So what is the nature of liability of each person? Let's discuss this. So first we will discuss about the contract of indemnity. In the contract of indemnity, there is going to be one contract only, that is between the indemnifier and indemnified. As there is only one contract, so there is no secondary contract, there has to be only primary contract. So the liability of indemnifier, of promisor, is primary. The promisor cannot shift the liability, promisor cannot share the liability with any other person. That's why it has to be primary, original and unconditional. So indemnifier cannot take an excuse and cannot shift the burden, cannot share the burden, cannot say, हम सिंपल शब्द में कहें तो जो लाइबिलिटी है इंडेमनीफायर की वो एकदम अनकंडीशनल है, उसे वो लाइबिलिटी किसी भी हाल में वो उससे एक्सक्यूज नहीं ले सकता है. अगर कॉन्ट्रैक्ट की सारी टर्म्स ओके है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इन्फोर्सेबल है, तो उसे जो है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना ही होगा. देयर हैज टू बी नो कंडीशन.
इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या है कि जो क्रेडिटर है, सपोज कीजिए क्रेडिटर एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो क्रेडिटर जो है लोन प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल डेटर को। सो प्रिंसिपल डेटर को जब क्रेडिटर लोन प्रोवाइड करता है तो प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर की सिक्योरिटी के लिए एक श्योरिटी से गारंटी भी दिलवाता है। सो इन दिस केस देर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट। द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज ओरिजिनल और द प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में है, क्योंकि क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को कुछ अमाउंट लोन पे दिया है। सो दैट इज अ प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट। द सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन श्योरिटी एंड द क्रेडिटर। तो जिस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लोन दिया है और जिस गारंटर ने श्योरिटी दी है, इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो जाएगा और उस कॉन्ट्रैक्ट को सेकेंडरी या कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे हम, क्योंकि प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो पार्टी के बीच में, उन दोनों के बीच कंसिडरेशन भी है, एक जने ने पैसा लिया है और एक को चुकाना है, तो वो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट तभी अराइज होगा जब प्राइमरी जो ओरिजिनल पार्टी है, दैट इज प्रिंसिपल डेटर, अगर वो पेमेंट का मतलब भुगतान नहीं करता है अमाउंट का, देन ओनली श्योरिटी की लाइबिलिटी जो है पिक्चर में आती है। तो ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट होगा। थर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो देयर विच इज बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी, जो कि राइटिंग में नहीं होता है बट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों के बीच में। जब सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है श्योरिटी, वो प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे क्रेडिटर को पैसा दे देती है, रीपे कर देती है, तो वो क्रेडिटर की जगह आ जाता है और दैट श्योरिटी कैन इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। सो ये 3 कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो इस केस में चूंकि लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की भी है और लाइबिलिटी श्योरिटी की भी है, तो प्रिंसिपल डेटर अपनी लाइबिलिटी को एक तरह से शेयर कर सकता है, क्रेडिटर जो है वो क्लेम कर सकता है, दोनों से, श्योरिटी से भी क्लेम कर सकता है और प्रिंसिपल डेटर से भी कर सकता है। इसलिए जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है वो सेकेंडरी रहेगी हमेशा और कंडीशनल रहेगी, इस कंडीशन के ऊपर कि प्राइमरी वाला पे जब नहीं करेगा तो इसका नंबर आ जाएगा। ऑल राइट, नाउ द थर्ड, द टाइम ऑफ लाइबिलिटी। नाउ व्हाट इज टाइम ऑफ लाइबिलिटी? इन फर्स्ट केस टाइम ऑफ लाइबिलिटी मीन्स किस टाइम ये लाइबिलिटी अराइज होगी। इंडेमनिटी के केस में कब इंडेमनिटी होल्डर जो है इंडेमनीफायर के अगेंस्ट में केस कर सकता है? ये केस तभी होगा, इंडेमनीफायर तभी लायबल होगा जब कोई कंटिंजेंसी या कोई इवेंट या कोई जिस चीज़ के लिए ये इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ऐसी घटना हो जाती है। उस घटना के होने पे अगर इंडेमनीफाइड को लॉस हो जाता है तो उस लॉस को रीपे करने के लिए लाइबिलिटी इंडेमनीफायर के ऊपर आ जाती है। सो टाइम ऑफ लाइबिलिटी इज व्हेन दैट पर्टिकुलर इवेंट अकर्स। नाउ इन केस ऑफ गारंटी, गारंटी में लाइबिलिटी कब होगी? एक क्रेडिटर से प्रिंसिपल डेटर ने कुछ पैसा लिया है उधार, प्रिंसिपल डेटर अगर उस पैसे को टाइम पे नहीं चुकाता है तो उस नॉन पेमेंट या अगर कोई ऑब्लिगेशन लिया है परफॉर्म करने के लिए, तो वो अगर नॉन परफॉर्मेंस होता है या नॉन पेमेंट होता है तो उस नॉन पेमेंट या नॉन परफॉर्मेंस के टाइम पे लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। नाउ टाइम टू एक्ट, कब इंडेमनीफायर को एक्ट करना है या कब इंडेमनीफायर को जो है लॉस हुआ है इंडेमनीफाइड को उसे पे करना है? तो इसमें है द इंडेमनीफायर नीड नॉट एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। तो जैसे ही लॉस हो जाता है तो इंडेमनीफायर को उसे जो है रीपे करना पड़ेगा, उसे रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है, इंडेमनिटी होल्डर को कोई रिक्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, उसे लॉस होते ही उसे एक्ट करना शुरू कर देना चाहिए। नाउ इन केस ऑफ श्योरिटी, क्योंकि श्योरिटी को जो अपॉइंट करता है वो प्रिंसिपल डेटर करता है, प्रिंसिपल डेटर के रिक्वेस्ट पे ही श्योरिटी जो है प्रोवाइड की जाती है, इस वजह से श्योरिटी का जो एक्शन है वो प्रिंसिपल डेटर के एक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होगा। प्रिंसिपल डेटर जब रीपे नहीं करेगा तभी उसे करना है। तो श्योरिटी ओनली एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर रिक्वेस्ट ना करे तो श्योरिटी को एक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ राइट टू सू थर्ड पार्टी, ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वैसे, बट एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। गारंटी के केस में क्या होता है कि अगर
प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं करता है अपनी डेट का, और क्रेडिटर को इस वजह से श्योरिटी के अगेंस्ट में एक्शन लेना पड़ता है, और श्योरिटी जो है गारंटर, वो प्रिंसिपल डेटर का कंप्लीट अमाउंट रीपे कर देता है क्रेडिटर को, या भले ही पार्शियल अमाउंट रीपे कर देता है, जो भी अमाउंट रीपे करता है, तो उस अमाउंट के रेस्पेक्ट में श्योरिटी जो है स्टेप इन कर जाता है क्रेडिटर के शू में। तो श्योरिटी क्रेडिटर की जगह आ जाएगा, और चूंकि देयर इज ए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर, तो वो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में केस करके जो अमाउंट उसने रीपे किया है वो रिकवर कर सकता है। सो बेसिकली थर्ड पार्टी जो है, दैट मीन्स प्रिंसिपल डेटर जो है, उसके अगेंस्ट में श्योरिटी डायरेक्टली क्लेम कर सकता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। इंडेमनिटी के केस में ऐसा नहीं है। अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से इंडेमनीफाइड को नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, तो उस लॉस को क्लेम इंडेमनीफायर डायरेक्टली नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन असाइनमेंट इन हिज फेवर। कहने का मतलब ये हुआ, इंडेमनीफायर अपने पर्सनल राइट में थर्ड पार्टी को सू नहीं कर सकता। थर्ड पार्टी को सू करने का जो राइट है वो इंडेमनीफाइड को ही है, ठीक है। इंडेमनीफायर और थर्ड पार्टी के बीच में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो इंडेमनीफायर को सिर्फ अमाउंट जो है वो इंडेमनीफाइड को देना होगा, और इंडेमनीफाइड जो है केस करेगा थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में क्लेम करने के लिए। ओके, नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस indemnity? Obviously to save one party, that is indemnified, from happening of any loss, from causing of any loss. So indemnifier जो है वो लॉस को बचाने के लिए एक प्रॉमिस करता है, तो लॉस की भरपाई के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। नाउ पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज टू प्रोवाइड एडिशनल सिक्योरिटी और एडिशनल प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर। सो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो क्रेडिटर्स हैं उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, ताकि अगर जिस पार्टी को लोन दिया वो पेमेंट ना करे तो दूसरी पार्टी से वो रिकवर कर सके। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। नाउ इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जितनी भी पार्टीज है, चाहे इंडेमनीफायर है, इंडेमनीफाइड है, ऑल पार्टी मस्ट बी ऑफ मेजर एज, मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, मस्ट नॉट बी क्या कहते हैं, मस्ट नॉट बी disallowed by law to enter into a contract. सो लीगली कॉम्पिटेंट होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशन है लीगल कॉम्पिटेंसी के बारे में वो फुलफिल होनी चाहिए इस केस में। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, जो क्रेडिटर है वो भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, बट क्योंकि प्रिंसिपल डेटर जो है वो एक बेनिफिशियरी है, तो प्रिंसिपल डेटर एक माइनर भी हो सकता है, और प्रिंसिपल डेटर अगर माइनर है तो उस केस में प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट तो जो है वैलिड नहीं रहेगा, लेकिन सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट जो श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में वो हमेशा वैलिड रहेगा, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड रहेगा। सो दिस इज अबाउट द कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो दीज आर दी फ्यू डिस्टिंक्शन बिटवीन contract of indemnity and contract of guarantee. Now in the next lecture we will be discussing about the contract of guarantee, the surety's liability, the discharge of contract of guarantee, the continuing guarantee, and the rights of sureties. Okay, all right.